Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. You're watching Constitutional Law series by Law by Nilay Kumar, and in this video we shall be discussing Article 16 of the Constitution of India. Before I begin with this video, I would like to put out a disclaimer for my viewers that this video has been made only for academic purposes and is in no way providing any legal advice to anyone. Equality of opportunity in public employment. This is what the header of the Article 16 say. Under Article 16, the guarantee against discrimination is limited to employment and appointment under the state. Article 15 is more general in nature and deal with all cases of discrimination which do not fall under Article 16. Thus, Article 15 is wider in operation. And like Article 15, Article 16 can be invoked by citizens only. Now let's decode here. Let's try to understand here what Article 16 is trying to tell us. This is the introductory part right now. Okay, so आपको पहली चीज़ समझने की ये ज़रूरत है कि जो आर्टिकल 15 है, ठीक है, वो आपको एक जनरल प्रोविज़न है, ठीक है, जो आपको प्रिवेंट करता है डिस्क्रिमिनेशन. इट प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन बाय द स्टेट एंड 15 क्लॉज 2 देखें तो इन बाय प्राइवेट सिटीजन्स एज वेल, राइट. लेकिन आर्टिकल 16 जो है ये पर्टिकुलरली गवर्नमेंट सर्विसेज जो होती हैं, द सर्विसेज दैट आर अंडर द स्टेट, ये गवर्नमेंट जॉब्स के लिए रिजर्वेशंस की बात करता है, राइट. इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का मतलब हो गया गवर्नमेंट जॉब्स, राइट. ये गवर्नमेंट जॉब्स की बात की जा रही है यहाँ पे. इसीलिए हम बोलते हैं कि आर्टिकल 15 का जो एम्बिट है वो आर्टिकल 16 के कंपैरिजन में वाइडर है, ठीक है. अगर आप सेकेंड लाइन पढ़े, आर्टिकल 15 इज मोर जनरल एंड डील विद ऑल केसेस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन विच डू नॉट फॉल अंडर 16 में जो डिस्क्रिमिनेशन के ग्राउंड्स हैं वो सिर्फ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए ही है. लेकिन 15 में क्या है, इन जनरल भी है. फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन की बात भी की गई है. फिर स्पेशल प्रोविज़न फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन की बात भी की गई है. तो वहाँ पे अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं. लेकिन जो मेन डिस्क्रिमिनेशन वाला जो क्लॉज है वो जनरल इन नेचर है. लेकिन आर्टिकल 16 में जो है डिस्क्रिमिनेशन वाला क्लॉज, जो अभी 16 क्लॉज 1 और 2 पढ़ेंगे हम, वो जनरल इन नेचर नहीं है, वो पर्टिकुलरली पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए ही है. ओके, लेट्स मूव ऑन. आर्टिकल 16 क्लॉज 1 एंड 16 क्लॉज 2. सबसे पहले पढ़ते हैं. इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी. फर्स्ट थिंग, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स. ये आर्टिकल 16 भी सिटीजन्स के लिए ही अवेलेबल है. इन मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट. नाउ ऑफिस अंडर द स्टेट का मतलब हो गया गवर्नमेंट जॉब्स. ऑफिस अंडर द स्टेट का मतलब हो गया गवर्नमेंट जॉब्स, राइट. क्लॉज 2 पढ़ते हैं. नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ religion, race, caste, sex, descent, place of birth, residence or any of them be ineligible or discriminated against in respect of any employment or office under the state. ठीक है. Now 16(1) is basically putting a negative duty on the state to not discriminate against citizens in public employment on the basis of 7 grounds. Now this is very important. Article 15 में 5 grounds थे. race, caste, sex, place of birth and where is it? Religion, race, caste, sex और place of birth, right? Sorry for the confusion. Religion, race, caste, sex और place of birth. यहाँ पे 7 grounds है. क्या है? Religion, race, caste, sex, descent is an addition, place of birth and residence is an addition.
तो वो 5 चीज़ें तो हैं ही, प्लस पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है तो उसमें इन्होंने 2 ग्राउंड्स ऐड कर दिए हैं, डिसेंट एंड रेजिडेंस। ठीक है, सो 16(1) इज पुटिंग अ नेगेटिव ड्यूटी, right? 16(1) is putting a negative duty on the state to not discriminate against citizens on these 7 grounds in matters of public employment. Now, clauses 1 and 2 guarantee equality of opportunity to all citizens in matters of appointment to any office or any other employment. ये बात तो हम डिस्कस कर ही चुके, right? It covers not only initial appointment but also promotion, age of superannuation and seniority. ठीक है, ये एक्चुअली ये लास्ट के जो तो पॉइंट्स हैं ये केस लॉ से उठाए गए हैं, बट आई हैव नॉट मेंशन द नेम ऑफ द केस लॉज बिकॉज दे नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, यू ओनली नीड टू अंडरस्टैंड द रेशियो ऑफ द जजमेंट। तो उसमें बोला गया है दैट ये जो हम अपॉइंटमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट की जो बात कर रहे हैं, ये हम बात सिर्फ अपॉइंटमेंट और एम्प्लॉयमेंट में नहीं कर रहे, इन टर्म्स में प्रमोशन, एज ऑफ सुपर एनुएशन और सीनियरिटी जैसे कॉन्सेप्ट भी इंक्लूडेड है। ठीक है, then we have Article 16, however, does not prevent the state from prescribing necessary qualifications and selective tests for recruitment for government services. कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई क्वालिफिकेशंस अगर डाली जाती हैं कि किसी गवर्नमेंट जॉब में कोई क्वालिफिकेशन डाली जाती है, तो वो क्वालिफिकेशन वाली जो कंडीशंस हैं वो 16(1) या 16(2) का वायलेशन नहीं माना जाएगा। इनफैक्ट अभी आप 16(3) में देखेंगे, अभी हम आगे बढ़ते हैं, 16(3) में देखेंगे तो रेजिडेंस जो है एज अ कंडीशन डाला जा सकता है। ठीक है, तो ज़रा इसको एक बार रीड करते हैं। 16(1) एंड 2 क्लियर हो गया, यहाँ पे और कुछ भी नहीं है। 16(3) की बात अगर अब हम करेंगे तो इसमें आप देखिए, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द पार्लियामेंट, नाउ दिस इज समथिंग वेरी न्यू, फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ prescribing what in regard to class or classes of employment or appointment to any office under the government or any local or other authority within a state or union territory, any requirement as to residence within that state or union territory prior to such employment or appointment. यहाँ पे बस एक बात समझने की आपको ज़रूरत है, दिस इज़ एन एक्सेप्शन। ओके, आर्टिकल 16(3) इज एन एक्सेप्शन टू आर्टिकल 16 क्लॉज 1 एंड 2, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली क्या बात किया जा रहा है, दैट रेजिडेंस कैन बी लेड डाउन एज अ कंडीशन फॉर अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बट दैट पावर टू डू सो लाइज विद द पार्लियामेंट एंड नॉट विद द स्टेट्स। सो इवन फॉर एनी स्टेट सर्विस, स्टेट यहाँ पे मतलब मैं स्टेट गवर्नमेंट वाली सर्विस की बात कर रहा हूँ, किसी स्टेट गवर्नमेंट की सर्विस में भी अगर रेजिडेंस को एज अ कंडीशन डालना है तो दैट ओनली पार्लियामेंट कैन डू सो। ठीक है, the states cannot do that. Now, in a case, the Supreme Court held that giving employment to the residents of a particular district on preferential basis is violative of Article 16. अब डिस्ट्रिक्ट के बेसिस पे, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने एक एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन निकाला और उसमें बोला जो लोग XYZ डिस्ट्रिक्ट के होंगे उनको प्रेफरेंस मिलेगी इस जॉब इंटरव्यू में, ठीक है, या फिर जॉब एप्लीकेशंस में। नाउ दिस इज क्लियरली वायलेशन ऑफ आर्टिकल 16 क्लॉज 1 एंड 2। ठीक है, सिमिलरली एक और केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला दैट एडिशन ऑफ बोनस मार्क्स टू द एप्लीकेंट्स ऑफ द रूरल एरियाज ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट वुड अमाउंट टू डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, एग्जाम में बोल दिया जो जो ये लोग रूरल एरिया से बच्चे एग्जाम्स दे रहे हैं उनको 5 नंबर एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। अब ये जो डिस्टिंक्शन है कि रूरल एरिया से हैं और अर्बन एरिया से हैं, ये डिस्टिंक्शन वायलेटिव है। ठीक है, प्लस पार्लियामेंट ने ये लॉ नहीं बनाया है, ये किसी स्टेट ने अपना कोई पॉलिसी बना लिया, या फिर जो भी स्टेट के अंडर में कोई अथॉरिटी थी जो कि एम्प्लॉयमेंट कर रही थी, अब एप्लीकेशंस निकाल रही थी, उसने ये अपने आप पॉलिसी बना ली कि आप पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते हो या रूरल एरियाज़ को बिलोंग करते हो तो आपको बेनिफिट मिलेगा 5 मार्क्स का या 7 मार्क्स का, ऐसे करके। तो दिस इज ऑल्सो वायलेशन ऑफ 16 क्लॉज 1 एंड 2। ठीक है, तो 16 क्लॉज 3 हमें क्या बताता है, दैट पार्लियामेंट बाय लॉ कैन प्रिस्क्राइब दैट रेजिडेंस कैन बी अ क्राइटेरिया फॉर अपॉइंटमेंट अंडर द स्टेट इन दैट पर्टिकुलर स्टेट और यूनियन टेरिटरी। ओके, now let's come to 16(4).
Nothing in this article shall prevent the state from making any provision for the reservation of appointments or posts in favor of backward classes of citizens, which, in the opinion of the state, is not adequately represented in the services. Not adequately represented in the services. This is important. ठीक है. So clause 4 basically enables the state to make special provision for the reservation of appointments or posts in favor of backward classes of citizens. अब ये backward classes जो है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है. हमने जब सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस किया था तो वो डिफाइन कर दिया गया है. हमने पिछले वीडियो में जब पढ़ा था आर्टिकल 15 के बारे में, वो डिफाइन कर दिया गया आर्टिकल 342A में और आर्टिकल 366 क्लॉज C में, राइट. लेकिन बैकवर्ड क्लासेस डिफाइन नहीं है, तो इसको हम जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट से समझेंगे कि बैकवर्ड क्लासेस का बेसिकली मतलब क्या होता है. ओके, नाउ आर्टिकल 16(4) का एप्लीकेशन कब होगा, दैट इज बैकवर्ड क्लासेस के लिए आप रिजर्वेशन कब बना सकते हो, ओनली व्हेन दीज टू कंडीशंस आर सैटिस्फाइड. फर्स्ट इज द क्लास ऑफ सिटीजन्स मस्ट बी सोशली बैकवर्ड. तो यहाँ पे एक्चुअली सोशल बैकवर्डनेस की बात की गई है. ठीक है, जब हम आर्टिकल 15 में थे वहाँ पे सोशल और एजुकेशनल दोनों बैकवर्डनेस की बात की गई है. देयरफॉर उसका नाम था SEBC, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस. बट यहाँ पे बैकवर्डनेस जो है वो मोस्टली सोशल ही है. एजुकेशनली तो होगी, अगर सोशल है तो देयर आर मैक्सिमम चांसेस कि एजुकेशनली होगी, बट यहाँ पे मोस्टली सोशल ऑस्ट्रेसाइजेशन के कारण इसको सोशल बैकवर्डनेस को रेफर किया जा रहा है. मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें पर्टिकुलरली हम आर्टिकल 15 और 16 के लैंडमार्क जजमेंट्स डिस्कस करेंगे इन फुल डिटेल. ठीक है, दिस इज़ द रीज़न कि मैं 15 और 16 के वीडियोस में लेक्चर्स में मैंने कोई भी मेजर केस लॉज आपके साथ डिस्कस नहीं किया है. ठीक है, इसके बाद का जो वीडियो होगा वो लैंडमार्क केसेस के ऊपर ही होगा. सो डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी लैंडमार्क केस. Second, you have what is the second condition? The said class must not be represented adequately in the services of the state. Inadequate representation basically. When these two conditions are satisfied, then the state can make any special provision with regard to reservation of appointment or post for backward classes. ठीक है, तो अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है ना, जो भी क्लासेस ऑफ पीपल है उनको बैकवर्ड क्लासेस डिक्लेयर किया जाएगा और उनके लिए आप आर्टिकल 16(4) के तहत आप स्पेशल प्रोविजन बना सकते हो. ठीक है, नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, बैकवर्ड क्लासेस में SCs एंड STs ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड है बिकॉज SCs और STs को सोशली बैकवर्ड माना जाता है. ठीक है, तो ये किसी जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट में था दैट SCs एंड STs आर इंक्लूडेड इन द बैकवर्ड क्लासेस, जो आर्टिकल 16(4) में यूज़ किया गया. ठीक है, नाउ कम्युनल लाइंस पे आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते, जैसे 10% फॉर ब्राह्मण्स, 20% फॉर मुस्लिम्स नहीं कर सकते. यहाँ पे आप विमेन को भी कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दे सकते बिकॉज यहाँ पे बैकवर्डनेस की बात की गई है. ठीक है, यहाँ पे विमेन के लिए या चिल्ड्रन के लिए रिजर्वेशन की बात नहीं की है जैसे आर्टिकल 15 क्लॉज 3 में की गई थी. Okay, let us now move on to 16(4)A and 16(4)B. Now this is where the story becomes quite interesting, right? Nothing in this article shall prevent the state from making any provision for reservation in matters of promotion. Now this is something new, with consequential seniority to any class or classes of post in the services under the state in favor of the scheduled castes and scheduled tribes, which in the opinion of the state are not adequately represented in the services under the state. Right? Now clause 4A was inserted by 77th Constitutional Amendment Act of 1995. It is an enabling provision that empowers the state to make reservations for SCs and STs for promotion to any class or classes of posts in the services under the state. Right? अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, तो जब ये इन क्लॉज 4A लाया गया था तो उस टाइम पे ये जो वर्ड है ना विद कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी, ये फ्रेज नहीं हुआ करता था यहाँ पे. ठीक है, फिर 4A को फिर से अमेंड किया गया 85th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2001 से, जब ये कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी ये वर्ड यहाँ पे ऐड किया गया. ठीक है,
अब ये क्यों किया गया, ये बात मैं अब आपको अगले स्लाइड में समझाता हूँ ठीक से। दिस इज़ अ फ्लो चार्ट दैट आई हैव मेड फॉर यू, ताकि आपको पीरियोडिकली टाइमलाइन के साथ सारी चीज़ें समझ में आए, ठीक है। अच्छा, वन मोर थिंग अगेन आई वांट टू make you understand that I will be making a separate video for case laws of articles 15 and 16. So don't think कि यह इंदिरा सोनी का केस मैंने इतना छोटे से मैं डिस्कस करके ख़त्म कर दिया है। इंदिरा सोनी और ये अजीत सिंह जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, मैं इसका एक पर्टिकुलर पोर्शन डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, जो हमारे लिए अभी रेलेवेंट है इस टॉपिक को समझने के लिए। ओके, नाउ आर्टिकल इंदिरा सोनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993 का केस है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, इन दिस केस अलोंग विद मेनी अदर ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो इंदिरा सोनी केस अभी और भी है जो हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट देयर शैल बी नो रिजर्वेशन पॉलिसी इन प्रमोशन टू पोस्ट्स अंडर द स्टेट। तो अब देखो, आर्टिकल 16(4) तक हमारा ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में था। 4A और 4B बाद में डाला गया। 4A को डाला गया कौन सी ईयर में, 4A को डाला गया 1995 में। इंदिरा सोनी का केस 1993 का है। तो इंदिरा सोनी साफ बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट इसमें दैट यू कैन नॉट प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन इन प्रमोशन। अभी तक हम रिजर्वेशन इन अपॉइंटमेंट्स या पोस्ट्स पे बात कर रहे थे, अब हम रिजर्वेशन इन प्रमोशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, विच इज रॉन्ग, राइट। तो इंदिरा सोनी ने बोला कि आप रिजर्वेशन एंड प्रमोशन नहीं प्रोवाइड कर सकते। तो फिर लेजिस्लेचर ने क्या किया, वो लेके आए 77 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। उन्होंने क्लॉज आर्टिकल 16(4)A इंसर्ट किया, और ये अभी हमने रीड किया दैट आर्टिकल 16(4)A इज प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन टू SCs एंड STs इन मैटर्स ऑफ प्रमोशन, राइट। तो बेसिकली इन्होंने इंदिरा सोनी का ये जो पोर्शन था जजमेंट का, रेशियो डेसिडेंडी जो था, ये जो पोर्शन था जजमेंट का, वो इन्होंने नलिफाई कर दिया, राइट। ये दे हैव नलिफाइड द रूलिंग ऑफ इंदिरा सोनी बाय इंसर्टिंग आर्टिकल 16(4)A, ठीक है। तो ये हो गया 1995 तक की बात। अब 1996 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया, अजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें बोला गया जो रिजर्वेशन इन प्रमोशन है उसमें कैचअप रूल फॉलो होगा और ना कि कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी रूल। अब इसको भी इन्होंने जो है सो ओवर रूल नलिफाई किया बाय अमेंडिंग 16(4)A, ठीक है। ये देखो, ये मैंने यहाँ पे लिखा है ना दैट पहले तो इंसर्ट किया गया इसको 77 से, फिर 85th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से इसको कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी टर्म इंसर्ट किया गया। अब इससे क्या हुआ, बेसिकली अजीत सिंह का जजमेंट नलिफाई हो गया, ठीक है। तो अब हम पहले ये समझते हैं कि कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी और कैचअप रूल होता क्या है। तो मैं अब आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। देर आर 3 पीपल A, B, C. A is from unreserved category, B is from scheduled caste category, C is from scheduled tribe category. Actually C को छोड़ो, आप बस इतना ही लो, दो ही कंपैरिजन बहुत है। दोनों की जो डेट ऑफ जॉइनिंग है वो A की पहले हुई है और B की बाद में हुई है, ठीक है। अब मान लो ये अभी ग्रेड 3 ऑफिसर्स हैं। अब कोई एग्ज़ाम होता है या फिर प्रमोशन की बात आती है, ठीक है, तो रिजर्वेशन एंड प्रमोशन प्रोवाइडेड है 16(4)A में, राइट। तो अब क्या होता है कि बी की प्रमोशन हो जाती है और अब वो एक ग्रेड 2 ऑफिसर बन जाता है, ठीक है। ए अभी भी ग्रेड 3 ऑफिसर है। इसके बाद कुछ दिन बाद ए भी मेहनत करता है और वो ग्रेड 2 ऑफिसर बन जाता है, ठीक है। तो बी रिजर्वेशन के कारण आया है, ए अपने मेरिट के बेसिस पे आया, ठीक है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि एट दिस स्टेज दोनों के दोनों सेम ग्रेड पे हैं, ए विल बी सीनियर और बी विल बी सीनियर, दैट्स द थिंग। तो अगर हम कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी के को फॉलो करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी रूल के कारण, मैं इसको CSR लिख रहा हूँ
दिस इज नॉट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जस्ट बी केयरफुल ऑफ दिस। ठीक है, कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी रूल के हिसाब से चलेंगे तो बी विल बी सीनियर। ठीक है, कॉन्सिक्वेंशियल बिकॉज बी का प्रमोशन पहले हुआ, irrespective of the fact कि A was the one who was appointed first in grade 3 officer, right? बट यहाँ पे क्योंकि B का प्रमोशन पहले हुआ है, irrespective of the fact कि उसका प्रमोशन रिजर्वेशन से हुआ है, ठीक है, B will be senior here। लेकिन अगर मैं कैचअप रूल के हिसाब से चलता हूँ तो बेसिकली कैचअप रूल कहने का मतलब ये है क्योंकि A भले प्रमोशन उसका लेट हुआ है बट ए की ज्वाइनिंग पहले थी, तो ए जब प्रमोट होके ग्रेड 3 से ग्रेड 2 में आता है और जो जहाँ पे बी ऑलरेडी पहले आ चुका है ड्यू टू रिजर्वेशन, ए विल गेट द अपॉर्चुनिटी टू कैच अप विद द सीनियरिटी विद बी। देयरफॉर इन कैचअप रूल ए विल बी सीनियर, राइट? तो बेसिकली कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी में जो है क्या हो रहा है, जो रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं उनको फ़ायदा मिल रहा है, वो ज्वाइनिंग लेट कर रहे हैं बट उनका प्रमोशन अर्ली हो रहा है अनरिजर्व कैटेगरी से, तो वो सीनियर हो जा रहे हैं। लेकिन कैचअप रूल में क्या होता है, कैचअप रूल में ये होता है कि आपकी ज्वाइनिंग पहले थी, भले प्रमोशन आपका लेट हुआ, तो आप जब रिजर्व कैटेगरी वाले के साथ सेम ग्रेड ऑफिसर बनोगे तो आपको कैचअप रूल लगा के आपको कैचअप करने का मौका दिया जाएगा, इसलिए द टर्म इज यूज्ड हियर, कैचअप, राइट? सो दिस इज व्हाट इज कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी एंड कैचअप रूल। तो हुआ क्या, अजीत सिंह के केस में जो है सो बोला था गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने कि कैचअप रूल को फॉलो करेंगे, लेकिन ये भी अमेंड कर दिया गया बाय द लेजिस्लेचर और उन्होंने अजीत सिंह के केस को नलिफाई कर दिया और उन्होंने कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी का प्रिंसिपल रिजर्वेशन इन प्रमोशन में डाल दिया। ओके, सो आई होप 16(4)(a) आपको ठीक से समझ में आ गया हो। Now let us come to 16(4)(b). Very easy. Nothing in this article shall prevent the state from considering any unfilled vacancies of a year which are reserved for being filled in that year in accordance with any provisions for reservations made under clause 4 or 4(a) as a separate class of vacancies to be filled in any succeeding year or years, and such class of vacancies shall not be considered together with the vacancies of the year in which they are being filled up for determining the ceiling of 50% reservations on total number of vacancies of that year, right? अब इसको समझने के लिए सबसे पहले खाली ये फैक्ट जान लो कि इंदिरा सोनी का जो केस था, उन्होंने बोला था कि आप ठीक है रिजर्वेशन प्रोवाइड करो बट एक लिमिट लगेगी रिजर्वेशन पे, दैट इज 50%। सारी रिजर्वेशन आप जो भी प्रोवाइड कर रहे हो वो 50% तक की लिमिट में ही होगा, इससे बियॉन्ड नहीं होना चाहिए। ये सीलिंग एक सेट की गई है, ऑल्दो इट कैन बी चेंज फ्रॉम केस टू केस बेसिस। इंदिरा सोनी का केस में रिजिडिटी नहीं थी बट बोला था कि स्पेशल सर्कमस्टांसेस में 50% का सीलिंग आप इंक्रीज कर सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे क्लॉज 4(b) जो है ये 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2000 में इंसर्ट किया गया, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, 1993 का इंदिरा सोनी का केस था, इसको भी नलिफाई करने की इन्होंने कोशिश की, ठीक है ना। बहुत कंप्लीटली नलिफाई नहीं किया, मैं आपको इस वाले पेज पे यहाँ पे समझा देता हूँ, आई एम इरेजिंग दिस। इस वाले पेज पे मैं आपको समझा देता हूँ कि 4(b) बेसिकली बोल क्या रहा है। मान लो 2017-18 ईयर है, इसमें अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 50 सीट्स आई एंड जितने भी रिजर्व कैटेगरीज है SCs, STs और अदर बैकवर्ड क्लासेस वगैरह जो है, इन सब के लिए 50 सीट्स थी, टोटल हो गई 100 सीट्स, ठीक है। अब क्या हुआ, इस 50 में से 50 सीट्स फिल हो गई, SC, ST, OBCs में से सिर्फ 45 सीट्स फिल हुई, ठीक है। तो अब 2018-19 में फिर से वैकेंसीज निकलेंगी, फिर से 50 सीट की वैकेंसीज निकली अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और फिर से 50 सीट की वैकेंसी निकली SC, ST और OBC के लिए, ठीक है। अब क्लॉज 4(b) क्या बोल रहा है, देखो कायदे से देखा जाए तो अभी पिछले साल की 5 सीट खाली है, ठीक है, 5 सीट्स आर स्टिल एम्प्टी। तो ये बोला जा रहा है कि ये 5 सीट की वैकेंसी अनरिजर्व नहीं रिजर्व्ड कैटेगरी में ऐड कर दी जाएगी।
तो इस साल की जो वैकेंसी हो जाएगी वो हो जाएगी 50 इधर और 55 इधर, तो बेसिकली 105 वैकेंसीज हो जाएंगी। अब कायदे से देखा जाए तो रिजर्वेशन जो प्रोवाइड हो रहा है 2018-19 के ईयर में, फाइनेंशियल ईयर में, उसमें 55% रिजर्वेशन है और बाकी का जो 45% जो बच रहा है वो आपको बच रहा है इसके लिए, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। नाउ डोंट यू थिंक दैट दिस इज इन स्ट्रेट अवे वायलेशन ऑफ द 50% सीलिंग लिमिट सेट बाय इंदिरा सोनी जजमेंट? तो इसका इन्होंने तोड़ ये निकाला, 14B में इन्होंने साफ कह दिया कि जो आप पिछले साल से कैरी फॉरवर्ड रूल अप्लाई, दिस इज नोन एज द कैरी फॉरवर्ड रूल, ठीक है, ये जो कैरी फॉरवर्ड रूल अप्लाई कर रहे हो वैकेंसीज पे, ठीक है, तो जितनी भी सीट्स कैरी फॉरवर्ड हो रही है नेक्स्ट ईयर में, दैट शैल नॉट बी काउंटेड इन दैट ईयर्स वैकेंसी फॉर द पर्पस ऑफ काउंटिंग 50% सीलिंग लिमिट। कहने का मतलब ये है, दो हमारे पास 105 सीट की वैकेंसीज है, बट ये जो 5 सीट जो पिछले साल से कैरी फॉरवर्ड हुई हैं, ये कैरी फॉरवर्ड हुई है ना, ये कैरी फॉरवर्ड हुई हैं, ये कैरी फॉरवर्ड नहीं काउंट किया जाएगा जब हम 50% सीलिंग को देखेंगे। इसीलिए यहाँ पे 50% सीलिंग लिमिट ब्रीच नहीं हुई है, ठीक है। तो कैरी फॉरवर्ड रूल अप्लाई जब भी करते हो आप, तो उसको 50% सीलिंग लिमिट जब भी काउंट करोगे तो उसमें उन सीट्स को काउंट नहीं किया जाता है। क्लियर? तो दिस इज व्हाट आर्टिकल 16(4)V वाज अबाउट। इसमें आप अगर देखोगे तो इसमें आपको कैरी फॉरवर्ड रूल आपको बस याद रखना है कि कैरी फॉरवर्ड रूल में 50% सीलिंग लिमिट को नहीं लिया जाता है, उसको काउंट नहीं किया जाता फॉर कैलकुलेटिंग 50% सीलिंग लिमिट, ठीक है। तो क्लॉज 4A यू कैन से दैट इट वाज इंसर्टेड टू नलिफाई द रूलिंग इन इंदिरा सोनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, जहाँ पे बात की गई थी कि आपका क्या नाम है, 50% सीलिंग लिमिट से 50% लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए रिजर्वेशन। क्लियर? नाउ लेट अस मूव ऑन टू आर्टिकल 16 क्लॉज 5 एंड 16 क्लॉज 6, ठीक है। Nothing in this article shall affect the operation of any law which provides that the incumbent of an office in connection with the affairs of any religious or denominational institution or any member of the governing body thereof shall be a person professing a particular religion or belonging to a particular denomination, ठीक है, and this is an exception basically. So here what is this is telling us is that the state can make a law providing that a person must belong to a particular religion for the appointment to a religious institution. This is an exception to article 16 clause 1 and 16 clause 2. आपको याद होगा 16 clause 2 में religion was also one of the grounds for discrimination. तो कायदे से देखा जाए, अगर आप किसी भी, मान लो एक मंदिर का पुजारी है या फिर मंदिर का ट्रस्ट है, ट्रस्ट का चेयरमैन जो है हिंदू होना चाहिए, ऐसा स्टेट लॉ बना रही है, तो इट इज स्ट्रेट अवे वायलेशन ऑफ 16 क्लॉज 1 एंड 2, राइट। इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हो आप बाकियों को, मुस्लिम भी तो हो सकता है। द आंसर इज नो। 16 क्लॉज 5 को एक्सेप्शन बनाया गया है, ठीक है, 16 क्लॉज 5 को एक एक्सेप्शन बनाया गया है 16 क्लॉज 1 और 2 का, इसीलिए ये वायलेटिव नहीं है, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू 16 क्लॉज 6। 16 क्लॉज 6 बेसिकली क्या बोल रहा है हमें, EWS रिजर्वेशंस की बात कर रहा है, जो 15 क्लॉज 6 में भी था। Nothing in this article shall prevent the state from making any provision for the reservation of appointments or posts in favor of economically weaker sections of citizens other than the classes mentioned in clause 4, in addition to the existing reservation, but subject to a maximum of 10%. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात की गई, दैट क्लॉज 6 वाज, एक तो क्लॉज 6 वाज इंसर्टेड बाय 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द ईयर 2019, ठीक है। इसमें ये एक इनेबलिंग प्रोविजन है विच एम्पावर्स द स्टेट टू मेक रिजर्वेशन फॉर EWS सिटीजन्स इन मैटर्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ पोस्ट अंडर द सर्विस ऑफ द स्टेट, ठीक है। ये बेनिफिट उन लोगों को नहीं मिलेगा जो ऑलरेडी आर्टिकल 16(4) में अपना बेनिफिट ले रहे हैं, मतलब जो बैकवर्ड क्लासेस थे वहाँ पे, जिसमें SCs और STs इंक्लूडेड है, उनको जो रिजर्वेशन ऑलरेडी मिल रहा है पोस्ट्स में, ठीक है, वो उन लोग को 16(6) के तहत EWS का रिजर्वेशन नहीं मिल सकता, ठीक है। 50% सीलिंग लिमिट जो है, इसके एडिशन में EWS रिजर्वेशन 10% दी जा रही है।
अब ये भी एक्चुअली कंटेस्ट किया गया है सुप्रीम कोर्ट में कि दिस इज इन वायलेशन ऑफ द 50% सीलिंग लिमिट, बट द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट नो इट इज नॉट. वी विल डिस्कस दिस केस इन डिटेल. Right. So a maximum reservation of 10% can be provided in addition to the already existing reservation. ठीक है. प्लीज़ एक चीज़ का ध्यान रखो, 16(4) जो है वो रिजर्वेशन इन अपॉइंटमेंट्स की बात करता है और 16(4)(a) जो है वो रिजर्वेशन इन प्रमोशन की बात करता है. दिस इज़ द रीज़न यहाँ पे लिखा हुआ है दैट वॉट एवर बेनिफिट पीपल आर गेटिंग अंडर क्लॉज 4, ओनली क्लॉज 4, नॉट 4A, बिकॉज EWS को सिर्फ रिजर्वेशन इन अपॉइंटमेंट और पोस्ट पे मिल रहा है. देयर इज नो रिजर्वेशन इन प्रमोशन फॉर EWS कैटेगरी. इट इज ओनली देयर फॉर SCs एंड STs. राइट. आई होप आपको ये बात समझ में आ गई हो. सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो. This is it for this video. If you have any doubts, you can mail it to me on nilaykumar.law.net@gmail.com, or you can DM me on my Instagram at law@nilay_kumar. Okay, and it's again, I'm requesting you, if you like my video, please like and share my videos with your friends, with your law school friends, and with your prep buddies, and don't forget to subscribe my channel, to my YouTube channel. Right. So thank you. I will see you in the next video.